So now the question comes, how do the animals survive when they hibernate or they go to winter sleep? All animals require energy to do things such as to walk, run, hunt for food. They also need energy to run the basic function of the body such as respiration and metabolism. It is how an animal is able to store and utilize its energy. Most animals are not capable of hibernating because they lack the amount of fat. Animals that hibernate put on another type of fat which is known as the brown fat. Now, what is a brown fat? Brown fat is also known as brown adipose tissue. It is a special type of fat that is found across the back and shoulder of hibernating animals, close to animals' organ such as brain or liver. When an animal wakes from its slumber, slumber का मतलब होता है नींद. So when the animal wakes from its slumber, the brown fat helps to deliver fat, energy, and heat to the waking animal. How the mammals deal with the cold. We know, I have already told you, that there is a layer of fat that provides insulation against the cold climate. The body surfaces are such which decrease the heat loss from the surface which is exposed. There is an increased metabolism, that is the consumption of uh, food, or the breaking down of food into simpler component is more. There is a decrease of metabolic cost. Increase in metabolism here also means that the simpler components that are formed, they are used most economically. The breaking down may be slow, but the use of those product, the metabolic product, is such that it is mostly utilized. Every bit of it is utilized. Insulation is provided by fur, fat, size of the animal, as well as the burrowing habit. Examples of hibernation is seen in bats. Bats are interesting for many reasons. They are the only true flying mammals. They navigate using echolocation. They have been around since dinosaurs' day, and they also hibernate. They are true hibernator, meaning that they are in such a deep sleep that they may appear to be dead. During hibernation, a bat's heart rate drops from 400 to 25 beats per minute, and its breathing slows so much that it might not take a breath for up to an hour. Bats hibernate in the cavities of large trees, caves, old mine shaft, old wells. Depending on the species of bat, it either hibernate alone or in a group. Second category of animal that go to winter sleep are hedgehogs. Hedgehogs hibernate anywhere from few weeks to 6 months, depending upon the weather. During hibernation, their heart rate drops almost 90%.
They wake briefly if their body temperature drops too low and let their waking heart rate warm their bodies up before going back into hibernation. हेजहॉग एक अनदर एनिमल है जो हाइबरनेट करता है। हाइबरनेशन के दौरान, जैसे पहले भी मैं बता चुकी हूँ, कि हार्ट रेट बहुत ही स्लो हो जाती है, लगभग 90% तक गिर जाती है। और हेजहॉग थोड़ी सी देर के लिए कभी कभार उठ जाता है जब उसके शरीर का बॉडी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा नीचे चले जाता है, और जाग कर वह अपने हृदय की गति को थोड़ा सा बढ़ा देता है, जो कि बॉडी की बॉडी में गर्माहट जो है वो पैदा करता है, और इसके बाद वो फिर हाइबरनेशन में चला जाता है। ग्राउंड स्क्विरल थर्ड एग्जाम्पल है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड स्क्विरल हाइबरनेट्स एंड some do so for 9 months a year. They also torpor. Torpor का मतलब होता है period of less inactivity during other times of the year or for a few days at a time. हाइबरनेशन लंबे समय के लिए शीत निद्रा में एनिमल चले जाता है। टॉरपोर के अंदर जो इनएक्टिविटी है वो कुछ ही समय के लिए होती है। एक यदि हम सामान्य भाषा में मानव के लिए अगर हम कहें तो नींद लेना हाइबरनेशन हो गया और थोड़ी सी देर झपकी लेना टॉरपोर हो गया। तो ये अंतर है हाइबरनेशन और टॉरपोर में। Ground squirrels have great hibernation spaces. They dig elaborate ground tunnels with different room for food storage, sleep and elimination. यानी कि ग्राउंड स्क्विरल जो है वो लंबे लंबे टनल्स बनाता है अपने ज़मीन के अंदर, जहाँ अलग अलग स्थानों में फूड स्टोरेज होती है। एक एक स्थान ऐसा है जहाँ पर वो सोता है, और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर वह अपना मल त्यागता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे उन जीवों के जो हाइबरनेशन करते हैं। जैसे मैं बता रही थी आपको, टू सर्वाइव थ्रू कोल्ड टेम्परेचर एनिमल्स हैव 3 स्ट्रेटजीज। 3 स्ट्रेटजीज के द्वारा एनिमल्स बहुत ही ठंडे वातावरण से अपने आप को बचाते हैं। तो पहला हाइबरनेशन मैंने आपको बता दिया। दूसरा है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है पलायन। Migration is the movement of a group of animal from one location to another in order to change habitat or living environment. माइग्रेशन में जैसे हम जानते हैं पक्षियाँ जो है वो माइग्रेट करती हैं, मछलियाँ जो हैं वो माइग्रेट करती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये स्थान आवश्यकता के अनुसार छोटी जगह पर हो सकता है और बहुत लंबी किलोमीटर की दूरी तय करके भी एनिमल्स माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेशन क्या है? इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन लोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह पर। किस लिए? टू चेंज देयर हैबिटेट, अपने जो आवास स्थान है उसको बदलने के लिए, या टू चेंज देयर लिविंग एनवायरनमेंट, अपने जो एनवायरनमेंट या पर्यावरण है उसको बदलने के लिए। मैनी फैक्टर्स मे इम्पैक्ट when the animals know it is time to move, including the length of daylight hours, change in available food, and how much energy it takes to stay warm. कई सारे फैक्टर्स हैं जो एनिमल को ये बताते हैं कि कब उसको पलायन या माइग्रेट करना है। सबसे बड़ा जो इंडिकेशन है वो उसे दिन की जो रोशनी है, डे लाइट में कितने घंटे हैं, कितने घंटों तक दिन की रोशनी रहती है, वो संकेत देते हैं। दूसरा, जब खाने के अंदर परिवर्तन आता है, फूड जो स्थानीय खाद्य पदार्थ जो अवेलेबल है, जब उनकी उपलब्धता में परिवर्तन आता है तब एनिमल को संकेत मिलता है। और तीसरा, कितनी एनर्जी उसे उस जगह पर गर्म रहने के लिए खर्च करनी पड़ रही है। इस स्थिति को जानकर एनिमल्स पलायन
करने के लिए सोचते हैं। थ्रू माइग्रेशन दे मूव टू some good location to avoid harsh condition. Though migration may seem like a good option, but it gives a great deal of stress to the animal because it takes so much energy to travel, and once they arrive there is still competition for resources like food, shelter with the native species as well as with themselves. हालांकि पलायन एक ऑप्शन होता है एनिमल्स के लिए अपने अनफेवरेबल जो एनवायरनमेंट है उससे बचने के लिए, परंतु पलायन जो है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल एक्टिविटी होती है। जब एक एनिमल अपने एरिया से दूसरे स्थान पर पलायन करता है तो उसे ना केवल अपने सजातीय कौन स्पेसिफिक के साथ कंपटीशन करना पड़ता है, कंपटीशन फॉर फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन, फॉर मेटिंग, न बल्कि ना केवल अपने साथी के साथ बल्कि जिस जगह पर वो पलायन कर आता है उस जगह के जो नेटिव लोकल स्पीशीज़ है उस लोकल स्पीशीज़ के एनिमल के साथ भी पलायन करने वाले जीवों को कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। थर्ड जो स्ट्रैटेजी है कोल्ड से बचने के लिए वो है रेजिस्टेंस या टॉलरेंस यानी सहनशीलता। द फाइनल एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन टू एक्सट्रीम कोल्ड temperature or climate is resistance or tolerance. Animals living in cold areas have large size so that their body mass to surface ratio is higher. For example, the polar bears are larger in size than any bear living in tropical areas like sun bear. वो बियर जो पोलर रीजन में रहता है उनका आकार बहुत बड़ा होता है दूसरे भालुओं के कंपैरिजन में जो कि ट्रॉपिकल रीजन में या गर्म प्रदेशों में रहते हैं। ठंडे प्रदेश में रहने वाले एनिमल के जो सरफेस एरियाज़ हैं वो बहुत ही बड़े हो जाते हैं, जैसे पोलर बियर में हमें देखने को मिलते हैं। देयर बॉडी मास टू सरफेस रेशियो इज़ हायर। बर्ड्स फ्लफ आउट देयर फेदर टू कीप अ लेयर अराउंड देम। पक्षी जो हैं वो अपने पंखों को और फर जो होती है उनमें उस पर उसको फुला लेते हैं, फ्लफ़ी कर देते हैं, हवा उनके अंदर भर लेते हैं। जैसे हम हमारे पिचके हुए पिल्लों को हाथ से दबाकर हम उसको फ्लफ़ी करते हैं, तो ठीक इसी तरीके से पक्षी भी अपने पंखों या परों को फ्लफ़ कर देती हैं जिससे इन फर्स के बीच में एयर जो है वो आ जाती है और एक इंसुलेशन प्रदान करती है। एनिमल्स हडल टुगेदर टू कीप वार्म और रूस्ट इन ट्री कैविटीज़। एनिमल्स जो हैं वो एक साथ चिपक कर अपने आप को गर्मी देते हैं, किसी कैविटी यानी किसी खोह में अपने सजातियों के साथ चिपक कर रहते हैं, हडल या कडल कर लेते हैं या बॉल बना लेते हैं। टाइनी ईयर्स एंड टेल्स आर अनदर अडेप्टेशन। एनिमल्स के अंदर जो कान है और पूंछ है वो भी छोटे हो जाते हैं सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए। थिकर कोट ऑफ फर और हेयर ग्रो टू ऐड एडिशनल लेयर। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फर जो है वो और ज़्यादा हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं। माउस ग्रो अ कोट विद
hollow hair to keep them warm. कई प्रकार की अनुकूलता एनिमल्स में ठंड से बचने के लिए देखने को मिलती है। इसमें एक प्रकार का जो माउस है उसके जो फर होते हैं जो उसके ऊपर स्किन के ऊपर रहते हैं उनमें हॉलो हेयर होते हैं जिससे इनको गर्मी प्रदान होती है। हॉलो यानी खोखले टाइप। Mountain goat have heavy wool undercoat and hollow hair that keep air trapped and close to the body. Shorter daylight helps to trigger response of the master gland of the body, hypothalamus, to change the behavior or appearance to prepare for cold. इन सभी जो चेंजेस है इसके लिए जब दिन की लंबाई छोटी हो जाती है तो वह हमारे ब्रेन में मौजूद जो मास्टर ग्लैंड या स्विच है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं उसको ट्रिगर कर देता है जिसके द्वारा कई सारे चेंजेस एनिमल्स में आ जाते हैं जो कि ठंड के प्रति अनुकूलन दर्शाते हैं। Some animal will increase their food intake to build up fat reserve और जब हाइपोथैलेमस से सिग्नल मिलता है तो एनिमल्स ज़्यादा से ज़्यादा भोजन को खाने लगते हैं जिससे उनके फैट का रिज़र्व बढ़ जाए allowing them to survive with a decreased food supply। और ये जो फैट का स्टोरेज होने लगता है जो वसा का स्टोरेज होने लगता है वह सर्दी के मौसम में जब खाने की अवेलेबिलिटी कम होती है तब इन्हें बिना खाए पिए ज़िंदा रखने में सहायक होते हैं। Some animal like beaver, red squirrel keep extra food when it is available, collect and store for winter when food supply is short। कई एनिमल्स जैसे कि स्क्विरल्स वगैरह ये अपने खाद्य पदार्थों को फूड सोर्सेस को जैसे नट्स हो गए फ्रूट हो गए उनको संचित करके रखते हैं। उनके पास ज़मीन में स्पेसिफिक बिल बने हुए होते हैं चेम्बर्स बने हुए होते हैं जहाँ पर वो अपने खाद्य पदार्थ को स्टोर करके रखती है और यह उस समय के लिए उपयुक्त होते हैं जब खाद्य सामग्री सर्दी के मौसम की वजह से उपलब्ध नहीं होती है। आर्कटिक फॉक्स, snowshoe hare, etc. change their fur color from brown to white to provide them camouflage। कई प्रकार के जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स, स्नो शू हेयर, हेयर यानी कि खरगोश, ये अपने फर के कलर को ब्राउन से या गहरे रंग से सफ़ेद रंग में परिवर्तित कर देते हैं जब सर्दी या शीत वेदर या विंटर वेदर आती है। न्यू फर कोट इज़ थिकर एंड act as a better insulator than the brown fur coat। और यह वाइट फर कोट जो है ये ज़्यादा घना थिक होता है और ज़्यादा इसमें बाल होते हैं जिसके द्वारा जो सर्दी के मौसम में सर्दी से बचाव मिलता है। कोल्ड बूस्ट मेटाबॉलिज्म, कई सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जिनके द्वारा हमें सर्दी के मौसम में गर्माहट मिलती है और ये जो प्रक्रिया है इसको हम कोल्ड बूस्ट मेटाबॉलिज्म कहते हैं। वन स्टडी इन माउस exposed that the mouse which is kept at 4 degrees centigrade air for 1 to 8 hours
3 times per week increased their metabolism and improved their blood sugar response. ये देखा गया कि एक चूहे को 4 डिग्री सेंटीग्रेड के हवा में रखा गया उसको, और 1 से 8 घंटों तक, एक हफ्ते में 3 बार, तो उनमें जो मेटाबॉलिज्म में इंक्रीज़ है वो देखी गई। एंड इम्प्रूव्ड देयर ब्लड शुगर रिस्पॉन्स, और उनके ब्लड शुगर का जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर भी परिवर्तन देखा गया। द कोल्ड हंग्री माइस ate so much to compensate for their higher energy burn that didn't lose any weight। और इस प्रकार से इस चूहे को, जिसको कि ठंडी हवाओं में रखा गया था, इसको ये ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य फूड को कंज्यूम करता था क्योंकि इसकी मेटाबॉलिक रेट जो थी वो इंक्रीज़ हो गई थी। और ऐसे एनवायरनमेंट में रखने के बावजूद भी, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य पदार्थ को कंज्यूम कर रहा था, इसलिए इसका बॉडी वेट जो है वो भी कम नहीं हुआ। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब सर्दी आती है तो जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ड्यूरिंग विंटर्स और ड्यूरिंग कोल्ड सीजन आर मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेज, एंड हेंस whatever we eat does not put on weight to our body or does not reduce our weight। सर्दियों के समय ज़्यादा भूख लगती है। हम अगर हमारा एग्ज़ाम्पल देखें तो सर्दियों में कई सारी चीज़ें हम खाते हैं। दिन छोटे होने के बावजूद भी चिक्की, रेवड़ी, गुड़ आदि, तिल के लड्डू आदि का जो सेवन है वो सर्दियों में किया जाता है, गर्मियों में नहीं किया जाता है। दूसरी जो चीज़ देखने को मिलती है सर्दियों के मौसम में वो है शिवरिंग। ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। शिवरिंग की वजह से जो हमारे शरीर के अंदर गर्माहट उत्पन्न होती है। शिवरिंग जनरेट हीट that's the thermogenesis part, and this increase in heat means a boost to your metabolism। जब हम शिवर करते हैं, शिवरिंग का मतलब होता है थर्मोजेनेसिस, यानी हमारे शरीर में गर्मी का पैदा करना। और इस तरीके से जब शरीर में गर्मी पैदा होती है तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज़ होता है। Although shivering thermogenesis account for some of the metabolic benefit of cold exposure। इस तरीके से शिवर जब हम करते हैं तो कुछ हद तक हमें मेटाबॉलिक फ़ायदा मिलता है। Brown fat, also called the brown adipose, convert food energy into heat energy। ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ। जो ब्राउन फैट होता है वो भी फूड एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। Cold signals the nervous system to release norepinephrine, which in turn activates the brown fat and increases the energy expenditure। जब बाहर का वातावरण ठंडा हो जाता है तो वह ठंडा वातावरण हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे तंत्रिका तंत्र को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर से नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से हमारे जो ब्राउन फैट है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनका जो कन्वर्जन है इनटू एनर्जी स्टार्ट हो जाता है। Hormone such as epinephrine, norepinephrine, thyroid hormone increases the metabolic rate by stimulating the breakdown of fat। और सर्दी के मौसम में हमारे नर्वस सिस्टम से जो सिग्नल्स रिसीव होते हैं वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जाते हैं
और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे कई सारे एंडोक्राइन अदर एंडोक्राइन ऑर्गन जैसे कि या ग्लैंड जैसे कि एड्रीनल्स, थायराइड, उनको स्टिम्युलेट करते हैं हार्मोन रिलीज़ करने के लिए। ये हार्मोन्स हैं जैसे एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, थायराइड हार्मोन। ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करते हैं। जब हमारा मेटाबॉलिक इंक्रीज़ होता है या जब हमारी मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होती है तो हमारे फैट के ब्रेकडाउन को स्टिमुलस या उद्दीपन मिलता है। During hibernation, the body temperature drops to only a few degree above the ambient temperature. Ambient temperature का मतलब होता है optimum temperature, यानी वह टेम्परेचर जो कि जिस टेम्परेचर पर हमारे शरीर की सभी कार्य की सभी फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से हो सकती है। इस एम्बियंट टेम्परेचर के ऊपर और इस एम्बियंट टेम्परेचर के नीचे हमारे शरीर की जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो असर होती है और हमारी एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो सकती है और अंततः एनिमल की मृत्यु हो सकती है। तो ड्यूरिंग हाइबरनेशन के समय हमारे बॉडी टेम्परेचर सिर्फ इतना ही ड्रॉप होता है, ओनली फ्यू डिग्री अबव द एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट टेम्परेचर से कुछ ही डिग्री गिरता है। द सप्रेशन ऑफ होल बॉडी एनर्जी एक्सपेंडिचर इज एसोसिएटेड with regulated but not passive reduction of cellular metabolism। और जब हमारे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होती है, रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर से होने वाली जो ऊर्जा की खपत है वो भी सप्रेस हो जाती है, दबा दी जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन एंड कोल्ड टॉलरेंस, वो है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप, यानी कि हाइबरनेशन का जस्ट उल्टा हम इसको मान सकते हैं। हाइबरनेशन यानी विंटर स्लीप, एस्टिवेशन यानी कि समर स्लीप। Estivation is a strategy used mainly by desert and tropical animals to get through the extremely hot and dry weather. To survive, animals dig into ground where they remain idle. Idle का मतलब निष्ठल, यानी विदाउट एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी का ना करना। एंड कूल, in doing so, they decrease their metabolic activity, save energy, conserve water in their bodies, and protect themselves from dying due to intense heat and dryness। अपने आप को एस्टिवेशन की अवस्था में लाने से एनिमल्स अपनी ऊर्जा को संचित करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देता है। इस प्रकार से उसके शरीर से पानी का और एनर्जी का नुकसान बच जाता है और शरीर जो ड्राइंग और एक्सेसिव हीट से और ड्राइनेस से बच जाता है। एस्टिवेशन के लिए हमें फॉसिल रिकॉर्ड्स से कई सारी जानकारी मिली है। फॉसिल रिकॉर्ड सजेस्ट दैट एस्टिवेशन में हैव इवॉल्व्ड सेवरल मिलियन ईयर्स अगो। और एस्टिवेशन जो है ये कई मिलियन ईयर्स अगो ही इसका उद्भवन हुआ है। एस्टिवेशन is typically defined as summer or dry season dormancy. The word derives from the Latin word for summer, estas। जो वर्ड एस्टिवेशन है ये लैटिन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है समर या हीट। एस्टास यानी समर, एस्टस यानी हीट, AESTUS, एस्टस यानी कि हीट, एस्टास AESTAS, एस्टास का मतलब होता है समर।
Estivation is an ancient trait. It is a survival strategy. Estivation जो है ये एक survival strategy होती है used by many vertebrate and invertebrate to endure arid environmental condition. Key feature of estivation include the metabolic rate suppression, strategy to retain body water, conservation of energy and body fuel reserve, altered nitrogen metabolism, mechanism to preserve and stabilize organs, cells, and macromolecules over many week or month of dormancy. Cell signaling is crucial to achieve both hypometabolic state and reorganizing multiple metabolic pathway to optimize long term viability during estivation. जब एनिमल एस्टिवेशन के लिए जाता है तो सेल सिग्नलिंग जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और सेल सिग्नलिंग की वजह से एक हाइपोमेटाबॉलिक स्टेट की अवस्था आती है जिसके द्वारा एनिमल्स जो है वो लंबे समय तक इनएक्टिव रह सकता है. The primary physiological and biochemical concern for an estivating animal are to conserve energy, to retain water in the body, to ration the use of stored fat reserve. Estivation is characterized by inactivity and lowered metabolic rate. Terrestrial as well as aquatic animals undergo estivation. The animals enter this state to avoid damage from high temperature and risk of desiccation and dehydration. Desiccation का मतलब सूख जाना और dehydration का मतलब होता है पानी शरीर से निकल जाना. Animal enter a light state of dormancy. It is a reversible phenomena. Estivation जो है ये reverse हो सकती है. Why do they undergo estivation? We already know. Animal क्यों estivation के लिए जाते हैं? अपनी energy को conserve करने के लिए, अपने शरीर के अंदर water को बरकरार रखने के लिए, अपने stored energy reserve को use करने के लिए, अपने नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को दूसरी किफ़ायत तरीके से हैंडल करने के लिए, अपने शरीर के कोशिकाएं सेल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स और ऑर्गन को स्थिरता प्रदान करने के लिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर के अंदर जो बॉडी की एक्टिविटी है वो हाइपर कंडीशन या स्टेट में जा सकती है जिससे शरीर को नुकसान हो सकता है. The depression of metabolic rate causes the reduction in macromolecule synthesis and degradation. और जब हमारे एस्टिवेशन में एनिमल चले जाता है तो उसकी मेटाबॉलिक रेट जो है वो धीमी हो जाती है. एज अ रिज़ल्ट ऑफ डिप्रेस्ड मेटाबॉलिक रेट मैक्रोमोलिक्यूल का सिंथेसिस और डिग्रेडेशन यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स का बनना और उनका डिग्रेड होना रुक जाता है या थम जाता है. दिस स्ट्रेटजी इज़ वाइडली यूज्ड ऑल ओवर बाय द एनिमल टू अचीव हाइपोमेटाबॉलिज्म. और ये जो एक्टिविटी है एस्टिवेशन की ये संपूर्ण एनिमल जगत में फॉलो की जाती है. बहुत एनिमल इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं अपनी मेटाबॉलिज्म को कम करने के लिए. इन सिंपल वर्ड, एनिमल हु अंडरगो एस्टिवेशन go through
some physiological process as hibernator. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि वे सभी एनिमल्स जो एस्टिवेशन करते हैं उनमें वे सभी प्रक्रियाएं होती है जैसे हाइबरनेशन के समय एनिमल्स के अंदर प्रक्रियाएं होती है। कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल जो हाइबरनेशन करते हैं, पहला स्नेल। सम क्रीचर दैट एस्टिवेट can rapidly return to their normal condition when there is need to. एस्टिवेशन हाइबरनेशन की तरह ही रिवर्सिबल है। एनिमल कुछ समय के लिए ही इनएक्टिव होता है और कुछ समय के बाद वो वापस अपनी एक्टिव अवस्था में जा सकता है। Certain snail species can go back to their original state after only 10 minutes of estivation. और कुछ एनिमल स्पीशीज़ जैसे स्नेल में 10 मिनट के बाद ही एस्टिवेशन जो है वो समाप्त हो सकता है और कुछ एनिमल्स जो है वो इससे ज़्यादा लंबे समय तक के लिए एस्टिवेशन में जा सकते हैं। लंगफिश। Lungfish can estivate for as long as 3 years by coating itself with mucus that preserve the moisture inside. It cocoons when it is dormant. Lungfish is also primitive fish that still has lungs so it can breathe without water. कुछ स्पीशीज है जैसे लंगफिश जो कि अपने चारों तरफ मिट्टी और म्यूकस का एक लेप बना लेती हैं और इसके द्वारा कोकून का निर्माण करती हैं और इस कोकून के अंदर 3 साल से लंबे समय तक समय बिता सकती हैं। डॉल्फिन्स भी एस्टिवेट करते हैं समर्स में। दे कैन स्लीप स्टैंडिंग अप और बेडेड डाउन ऑन द ग्राउंड। बॉटल्ड नोज्ड dolphin sleep during the night, floating about a foot under the water. डॉल्फिन्स जो है वो कुछ समय के लिए एस्टिवेट करती हैं। हेजहॉग्स भी समर स्लीप करते हैं। When the weather is really hot, estivation is like hibernation except for it takes place during the hot weather instead of cold weather. Animals other than these also use techniques of estivation to bypass hot summer uh, spill. They are crab, lemur, crocodile and desert hedgehog. इन एनिमल्स के अलावा और भी कई एनिमल्स हैं जो लंबी गर्मी के दौर को एस्टिवेशन के द्वारा बिता देती हैं जैसे कि केकड़े, लीमर, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ और हेजहॉग। टॉरपॉर। Torpor is an efficient means of energy conservation. It is viewed as a state of inactivity. It is devoid of any behavioral aspect. Harvard Medical School neuroscientists have discovered a population of neuron in the hypothalamus that controls a hibernation like behavior which is called torpor. As I have already mentioned earlier, torpor is like hibernation but it occurs for a less duration of time. They have observed that when these neurons are stimulated, the animal enter torpor period of
small in activity. And when the activity of these neurons are blocked, the natural torpor is disrupted. So, scientists have found that there are some neurons in the hypothalamus, and it is due to this region in hypothalamus that the animal undergo torpor. Now, when the activity of these neurons are stopped, then the torpor is interrupted. That is, the animal does not go into period of inactivity. Torpor is also called dormancy. When torpor or hibernation occurs, we see an elevation in a hormone called testosterone, which inhibit the hibernation. When torpor expression exceeds 24 hours, the behavior is considered as hibernation. Now, हाइबरनेशन या टॉर्पोर जो है वो हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन के द्वारा इनहिबिट हो जाती है। टॉर्पोर जब 24 घंटे से ज़्यादा लंबे समय के लिए होती है तो हम इसे हाइबरनेशन कह सकते हैं। टॉर्पोर ऑनसेट इज़ ऑल्सो इनहिबिटेड बाय प्रोलैक्टिन। टेस्टोस्टेरॉन के जैसे ही प्रोलैक्टिन भी टॉर्पोर की स्थिति को स्टॉप कर देता है। इन साइबेरियन हैमस्टर द लाइट डार्क cycle entrains the suprachiasmatic nucleus in hypothalamus of the brain to control the onset of torpor. Now, in hypothalamus, as I've already mentioned, there are certain neurons which is responsible for the start of torpor. उनकी वजह से torpor जो है वो start होता है। It is said to be an adaptation of endothermic vertebrates that enables them to survive energy demand of cold ambient temperature. और टॉर्पोर भी एक प्रकार का अडेप्टेशन है एंडोथर्मिक एनिमल्स के द्वारा, जो कि इन्हें सर्दी के मौसम में या सर्दी से बचाव करने का या सर्दी से सरवाइव करने की स्ट्रेटजी प्रदान करता है। इट इज़ अ स्ट्रेटजी टू सरवाइव द कोल्ड एम्बियंट टेम्परेचर। It is a temporary drop in body temperature and metabolic rate. Torpor क्या है? It is a period of dormancy, or we can say that it is a period of small inactive spur, or we can say that it is a condition when the temperature drops or the body temperature drops for some time temporarily, and the metabolic rate also drop temporarily. Scarcity of food or resources is said to promote torpor state. जब खाने की कमी होती है उस समय भी टॉर्पोर की अवस्था आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि टॉर्पोर एक छोटे अंतराल के लिए एक रेस्ट पीरियड होता है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर हम हाइबरनेशन को हम हमारे नींद से कंपेयर करें तो टॉर्पोर कभी भी आने वाली एक झपकी के समान होती है।